हेलो। السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। سلیم سر سے بات ہو رہا ہے میرا. जी हाँ, बात कर रहा हूँ. فارس قادری بول رہا ہوں صاحب, ناگپور سے. जी जी जी, फरमाइए. آپ कैसे हो फारिस में आप؟ الحمدللہ صاحب. ابھی जी, دیکھا میں نے آپ کا نیوز میں, آپ کو اریسٹ ہوئے سر مسجد کا, کیا تو بھی مسئلہ ہوا سر وہ؟ ये सेक्रेटरीट जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, یس. इसमें दो मसाजिद थे جی जिसको वास्तव के नाम के ऊपर جی. यानी मस्जिदें वहां से तोड़ देने का कुछ उनको सीएम को نہیں, سیکریٹریٹ उनके کی जो مسجد کا دیکھا میں, وہ دیکھا, بٹ اریسٹ ان کا کیوں مسئلہ سر, اریسٹ کیوں ہوئے آپ, وجہ کیا تھی اس کا؟ देखिए आज 6 महीने होने आ रहा बरोबर. फारिस, और 6 महीने से मस्जिदों को एक प्लान के तहत जो है शहीद कर दिए गवर्नमेंट. बरोबर. वो कुछ वास्तव का चक्कर था उनका तो सीएम आप साहब. प्रोटेस्ट करے اس के लिए, رائٹ؟ हाँ, वो तो करते आ रहे हैं बहुत बहुत जब से मस्जिदें शहीद हुई. سر تو یہ آپ کی پارٹی, آپ کے ایم آئی ایم والے, وہ کہاں گئے تھے پھر؟ ये देखिए वो लोग हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, بروبر, میں نے لگایا गवर्नमेंट بھی के تھا ان साथ. لوگوں کو فون, فون اٹھا رہے نہیں ہے کوئی بھی ذمہ دار. اب بابری مسجد کے اوپر اتنا بولے انکل یہ لوگ, تو जी, آپ بھی پھر ابھی یہ عمر میں احتجاج کر رہے, آپ ان کا کام ہے کہ سپورٹ کرنے کا اس کی, کیا مسجدوں کے بھی درجے چھوٹے بڑے ہونے لگ گئے کیا؟ بابری مسجد میں نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ملتا ہے اور حیدرآباد کی مسجد میں پڑھو تو کم ملتا ہے کیا؟ ان کا देखिए کام تھا. यहाँ तेलंगाना में 5 मस्जिदें शहीद हुई. جی एक खाना मस्जिद भी है. بالکل. उसके लिए भी यहाँ की जो लोकल पार्टी है एमआईएम, उन लोग ने ऐलान किया वहां जाके नमाज पढ़े, बोले कि यहाँ मस्जिद बनेगी. और पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मस्जिद बराबर बनेगी, بالکل. लेकिन वहां पे मस्जिद नहीं बनी. और जो डिस्ट्रिक्ट में जो है एक दो मस्जिद शहीद हुए खम्मम वगैरह में. तो टोटल 5 मसाजिद ये टीआरएस की गवर्नमेंट ने शहीद किए. सेक्रेटरीट की जो मसाजिद है वो तो बिल्कुल उसके अंदर ईशा की नमाज हुई और रात में जो है उसको जो है वो ग्रेनेड्स वगैरह लगा के उसको जो है ब्लास्ट कर दिए. ऐसे नहीं कि मशीन लगा के उसको तोड़ा हो, جی. थोड़ा 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 तोड़ रहे हो, नहीं. रात में तोड़ा और फजर की नमाज से पहले मस्जिदें गए. اور अब جب ये ایم भी آئی पता ایم नहीं والے चला خاموش. अभी ये भी पता नहीं चला कि उसके अंदर जो कलाम मजीद थी, जाय नमाज थे, उसके अंदर जो है तोगरे हैं, पारे हैं, वो कहाँ गए, निकाले नहीं निकाले, या वो मलबे के साथ मिट्टी के साथ निकाल के डिमोलिश मलबे के साथ फेंक दिए. ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला. تو اس اور ٹائم پر میں بیرسٹر اور اسد الدین اویسی, اور کہاں گئے تھے حیدرآباد کے باقی لیڈرز, کہاں گئے تھے صاحب؟ اب یہ پورے ہندوستان میں کچھ ہوتا چیخ چیخ کر بولتے ان کا گھر نہیں سنبھالا جا رہا, اور آپ ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ یہ عمر میں ایسا احتجاج کرے. دیکھا میں نے ابھی کافی, آپ اریسٹ بھی ہوئے تھے شاید, رائٹ؟ دیکھیے یہ جو ہے کہ ایمانی جذبہ ہے آپ کا اور ہمارا بالکل. اللہ کے گھروں کے لیے. یہ کوئی اس سے کوئی پولیٹیکل کوئی مائلیج ہے نہ, مجھے تو خیر کچھ لینا دینا نہیں ہے پولیٹیکل, نہ کوئی بالکل. الیکشن لڑنا ہے, نہ کسی پارٹی سے میری کوئی دلچسپی ہے. بالکل. بس میری مرضی ہے کچھ کینڈیڈیٹس کی میں نکل کے مدد کرتا ہوں, میرے کو اچھے لگتے ہیں تو میں ذاتی طور کے اوپر میں جا کے کہتا ہوں کہ میں پرسنل آیا ہوں اسپیچ دینے کے لیے. تو آدمی کی اپنی ایک چوائس رہتی ہے کہ میں جیسے فارس قادری ہے ناگپور سے لڑ رہے ہیں, اگر میرا دل بولا تو میں آ کے فارس قادری کے لیے جلسہ کروں گا, تقریر کروں گا, یہ اچھا ہے اس کو ووٹ دو. بالکل بھائی, تو باقی یہاں میرے بھی کو تو انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹیکل میں, سیم ٹو سیم, بٹ بولنا بہت ضروری ہے. جیسا میں بولا ویسے آپ بھی بول رہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ. باقی ایم آئی ایم والے جو حرکتیں, جو سیاست کھیل رہے نا انکل, یہ بھی بہت غلط چیز ہے. ایکس وائی زیڈ, اب انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر میں بی جے پی اور ایم آئی ایم دونوں مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں. وہ ہندو ہندو کر رہے, یہ مسلمان مسلمانوں کے نام پہ سیاست کر رہے, اس میں پبلک کو ڈیوائڈ کر دیے نو, اور دونوں اپنی روٹیاں سیک رہے. جی, بٹ اس کے لیے وہ کچھ تو نہ وہ کچھ تو وہ کرنا تو بہت وہ تو ضروری ہے. وہ تو آپ کی ماں وہ کی تو مسجدہ دیکھ کے میرے کو افسوس ہوا جب جی ہندوستان کی مسلمانوں کی رہنمائی کی باتیں کرتے نو, آپ کے یہاں پہ جی 5 مسجدہ شہید ہو گئی, جب یہ لوگ خاموش بیٹھے. آپ لوگ سیکریٹریٹ کی مسجد کے لیے پروٹیسٹ کرے, جو بھی کرے ایکس وائی زیڈ, میرے کو تو نہیں معلوم, بٹ اس میں ان کا وہ لوگ کام تو تھا تین سپورٹ مہینے کرنے تک کا. وہ تو 3 مہینے تک وہ لوگ خاموش رہے. جب
इलेक्शन हम नहीं लोग है ना साहब, 2023 में यूज जब हम करेंगे, मैं पहले भी लोग बोला जब था ये हम बात लोग को। जब हम लोग गड़बड़ करने लगे, आके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एहतजाज करने लगे, लोग हाईकोर्ट को गए। एक यहाँ पे हैदराबाद में मुश्ताक मलिक साहब हैं, जी जो जेएसी बोल के चलाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी। उन्होंने मिलियन सिग्नेचर जो है मस्जिद के लिए करवाए। जी जब ये सारा होने लगी, गड़बड़ होने लगी, और टीआरएस और एमआईएम जब दोनों की बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी, लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने साइन किया मस्जिदों के लिए। तो उसके बाद असेंबली के अंदर जो है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत मजबूर होकर ऐलान किया कि मैं वहां पे जो है मस्जिदें की जमीन जो है दे दूंगा, एक बड़ी मस्जिद बना लो दोनों मिला के, और मंदिर भी बना दूंगा, चर्च भी बना दूंगा, और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है मैं उसका संगे बुनियाद रख दूंगा, स्टोन। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ गलती से बिल्डर की कुछ हिस्सा मस्जिद का गिर गया। एक्चुअली 2 मस्जिदें अलग अलग जगह है, जी। तो थोड़ा सा अगर मलबा गिरता है, मतलब डिमोलिशन का, तो दोनों मस्जिदों पे गिरा क्या, एक साथ, जो दूर दूर है, एक गली छोड़ के है। ये तो इलेक्शन ये के लिए खुद ब खुद गेम करते हैं अंकल, ये लोगों का काम क्या है, इलेक्शन जब आता है ना उसके लिए गेम करते। अब इतने टाइम खामोश, 2023 में वही यूज करेंगे लोग टीआरएस के अगेंस्ट, फिर वही बीजेपी को वहां मजबूत करेगी। अभी देखना आपने, अगर ऐसे ही चलता रहा 2023 में बीजेपी वहां पर में आता। और खुशी हुई बीजेपी बहुत बराबर, अंकल कि आप बीजेपी लोग प्रोटेस्ट कर रहे कि बीजेपी ऐसे भी लोग हैं हैदराबाद में जो इनको बोल सकते हैं। नहीं नहीं, बीजेपी तो बराबर आएगी, क्योंकि अभी बीजेपी का जो अल्टरनेट है, वो हम्म। पूरा अल्टरनेट को डैमेज कर रहे हैं। बरोबर तो बीजेपी जाएगी कहाँ बताओ, बीजेपी तो रहेगी। बरोबर यानी झाड़ के जो है सब, जो जो पंखड़ियां हैं वो काट रहे हैं, तो बरोबर पेड़ तो बाकी रहेगा ना। बरोबर। तो ये पेड़ को बाकी रखने का काम कर रहे हैं इंडिया में। झाड़ की टहनियां काट रहे हैं, पेड़ बाकी रहेगा। कोई भी, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जी या वो लोग जो कल के दिन रिप्लेसमेंट ऑफ बीजेपी हो सकते हैं, लाइक बरोबर। ममता बनर्जी हो, आम आदमी हो, और आरजेडी हो, समाजवादी हो, तो आपके या हैदराबाद, कांग्रेस एक हो। बात थी मेरे लिए अंकल, एक बात था कि जी ये हिंदुस्तान में पूरा बैरिस्टर साहब घूमते रहते हैं, जी मुसलमानों के नाम पे कलमे की बुनियाद जी पे वोट मांगते हैं, पब्लिक को जी डिवाइड जी करते हैं। तो इनको जी हैदराबादी संभाला नहीं जा रहा। आपके यहाँ 5 मस्जिद शहीद हो गए, जब इस टाइम पे जी। ये लोग खामोश, तो आपके यहाँ की पब्लिक कुछ बोलते नहीं है क्या? ये पब्लिक के ऊपर जैसा हिप्नोटाइज बोलते ना, हम्म जादू जैसा बोलते, हम्म। वैसा कुछ शक्तियां इनके पास है, इनके बरोबर कमर है, में पर बाकी लोगों को भी समझना चाहिए अंकल इस चीज को कि बाबरी मस्जिद का नाम सुन के खून खौल जा रहा, तो हैदराबाद की मस्जिद का नाम सुन के खून क्यों नहीं खौल रहा? क्योंकि उसमें बैरिस्टर साहब नहीं बोल रहे। मतलब जो बैरिस्टर साहब बोले वही होता, ये गलत बात है। उस्मान नगर का हाल आज भी देखो, मेरे को उस्मान नगर से भी लोग नागपुर आज भी फोन लगा रहे, आपके पास भी आ रहे होंगे कि भाई जी। ऐसा वैसा। मतलब ये कुछ संभाला नहीं जा रहा है क्या इनसे? हमसे ये मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते, और आज के दौर पे ये हो रहा है हाल। आपसे अपना शहर नहीं संभाला जा रहा, पूरे हिंदुस्तान की बातें करते। अभी बंगाल में बड़ी तबाही मचाते। अभी बंगाल हो या आसाम हो या बिहार हो, बिल्कुल यहाँ के मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। बिल्कुल। वो सीए लगाएंगे, एनआरसी लगाएंगे 2024 के इलेक्शन से पहले, और लाखों मुसलमानों को वो लोग बेदखल करेंगे। ये घुसपैठिए है बोल के, हम्म। समझे। और जिस तरह रोहिंगा बर्मा में जी आज 14 लाख मुसलमान जंगल में पड़े हैं, जी पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं। जी। खामोश है ना, बड़े बड़े मुल्क खामोश है मुसलमानों के। बरोबर। आप फलस्तीन को देखिए, फलस्तीन का मसला और बैतुल मुकद्दस क़िबले अव्वल, जी आज मुसलमान हुक्मरान उसके लिए खामोश हो गए। और दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के ऊपर यहूदियों का परचम लहरा रहा, बुर्ज खलीफा पे, और यहूदी आके वहां खड़े के इबादत कर रहे हैं। ये वीडियोस देखने में आए। जी। दुबई में, अबू धाबी में जो है एक मंदिर का निर्माण हुआ, हम्म। यहां से जा रहे हैं तरश के पत्थर वगैरह, बरोबर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, देखा ना आपने, जी जी जी। जो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिफ्ट किया उन लोगों ने। बरोबर। तो ये सब चीजें क्या है कि मुस्लिम क़यादतें जो भी है दुनिया में हो, या यहाँ हो, या बैरिस्टर हो, ये सब अपने इख्तदार के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने आप को बचने के लिए, वरना इनका हाल आजम खां का हो जाएगा।
बरोबर। जिस तरह पड़े हैं आज 9 महीने से आजम खान साहब, 10 महीने से बड़ी मुसीबत से उनकी बैरिस्टर बीवी अगर की दलाली डेथ। करना छोड़ दे बीजेपी का तो बैरिस्टर का किस्सा 2 दिन में खत्म हो जाता, ये बात हो तो जाएगा। हकीकत है। उनके क्योंकि उनके आज जो अपने भाई हैं, उनके भाई के ऊपर जो केस है देशद्रोही का, वो तकारीर का, वो उसकी एफआईआर बरोबर का नॉन बेलेबल था वो चीज पे आपको बेल मिल ही नहीं सकता, वो केस ऐसा था। फिर भी आप सोचो कि अगर सेंटर से सपोर्ट ना रहता तो आज जी, अकबरुद्दीन अवैसी बाहर नहीं रहते, आज अंदर रहता उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और एमआईएम को मैं भी अभी तक खुद ब उनको खुद उसके अंदर कम से कम 10 साल की सजा है, बिल्कुल और मिनिमम 6 साल की। बिल्कुल और तो नॉन अभी बेलेबल तक है। वो लोग नॉन अवेलेबल है, उसको सजा करवा देते हो लोग। बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को अंदर डाल दिए, इतने बड़े नेता को। वो बिल्कुल। बीजेपी का दुश्मन था। जो जो दुश्मन है उनको, उन सब की हिस्ट्री देखते बाकी जाओ। एमआईएम वाले तो दोस्त थे ना इनके, क्योंकि यही वजह थी। आज इनकी वजह से 30% बता रहा हूं मैं अंकल कि आज जो है बीजेपी आने में अच्छा खासा हाथ इनका है। हाँ आज बिल्कुल है ना। ये जो ये कर रहे देखिए, हैं सबसे हिंदू पहली। हिंदू वोट जो है, हिंदू बिल्कुल वोट पोलराइज हो रहे हैं, पोलराइज। बरोबर आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइज बरोबर। होता है, यानी मैं आके मुसलमान की बात करता हूँ, बीजेपी को बुरा बोलता हूँ, तो वहां बीजेपी जो है एक जगह जमा हो जाती है, क्या बीसी आ गया। और आप जाके संघ परिवार के पेजेस को देखो, उसके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी नफरत, इनके तकारीर के नीचे जो गाली गलौज है, आप पढ़े तो आपके कान आंख के ऊपर जो है कांटे खड़े हो जाएंगे। जो बिल्कुल मुसलमानों की इतनी गंदी गंदी गाली हैं, पूरे आरएसएस के पेजेस जाके देखो आप, जिस पे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर है, असदुद्दीन अवैसी की तकरीर है, उसके नीचे हमारे मुसलमानों के ताल्लुक से कितना जहर भरा हुआ है देखो। और अमेरिका की एक न्यूज में देख रहा था कि इंडियन जेनोसाइड, इंडिया के अंदर जो है आने वाले दिनों में जेनोसाइड होगा, यस। जिसमें लाखों मुसलमान मारे जाएंगे। ये नफरत जो फैल रही है, हम्म। ये नफरत से एक, मतलब एक हिंदुत्व का जो है जो नारा होगा, और छोटी छोटी बात को लेके जो बड़े फसाद होंगे, उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम होगा। एक हम्म। अमेरिकन रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं जेनोसाइड के ऊपर, खैर ये मैं तो आपको सब अंकल भेजता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर सब कुछ ऐसे ही चलते रह रहा है, क्योंकि सभी लोग अभी के दौर पे अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। वो हिंदुओं हाँ के नाम पे खेल रहे हैं या मुसलमानों के नाम पे खेल रहे हैं। अपना काम है कि इन लोगों को जो है सही, और पब्लिक को समझना चाहिए कि इस चीज में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज मुसलमान मुसलमानों की बात ये कर रहे, हिंदू हिंदुओं की बात ये कर रहे। डेवलपमेंट एजुकेशन का ही नहीं है। आप नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन हाल देखो आप। यहाँ पे कोई इनका अरे पूरे मैनिफेस्टो नहीं होता। हिंदुस्तान में देख लीजिए अंकल देखिए, आप, जब यहाँ पे बैरिस्टर यमआईएम का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। और जब मैनिफेस्टो सबमिट करने की बारी आती है तो एक लेटर देते हैं कि हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। बोले बरोबर तो कोई नौकरी, बच्चों को जॉब्स दिलाएंगे, या मकानात दिलाएंगे, या गवर्नमेंट से लोन दिलाएंगे, उनको स्टैंड करेंगे। आज हजारों नौजवान आज बेरोजगार हैं। तो ये जो बेरोजगार बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, वो इतने बेरोजगार हैं, उनको 1000-2000 रुपए दिए तो निकल के आपको गाली गलौज कर देते हैं। इलेक्शन के अंदर बुको से उठन करना, फला करना, लोगों को जो है मारना, लोगों पे हमले करना। तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इतना बैड हो गया है कि हजारों औरतें निकल के बोका शूटिंग के दिन एक बिजनेस की तरह जो है, चलो आज हमको 2000 रुपए मिलेंगे दिन भर के लिए, 3000 रुपए मिलेंगे, जाके वोट डालते हैं, 20-20 वोट, 30-30 वोट। चूंकि चूंकि बुरखे में है तो उसको नकाब उठा के बताओ नहीं बोल सकते ना, झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तो पुलिस भी मिली हुई होती है इनके साथ, हुकूमत के साथ, इसीलिए रहते हैं लोग। तो ये लाजमी है कि यहाँ पे जहालत, और हमारे पास गुर्बत बहुत हो गई है, एजुकेशन कम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल। कम हो गई, और बेरोजगारी वो बहुत एक ही ज्यादा चीज हो से गई। चेंजेस होगा अंकल, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में ढंग से आना चाहिए। पब्लिक अगर एजुकेशन रहेगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस रहता, उसके बाद में पब्लिक जान सकती कि अपना क्या अपने को लीडर चुनना है, कौन सा अपने जो है सारे हमदर्द है आप क्या है। एक रिपोर्ट नहीं पढ़े कमीशन की, कि मुसलमान बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे आ गया।
بالکل بالکل، بیرسٹر صاحب ایجوکیشن کا کے میٹر کام میں. تھا ان میں انکل، بیرسٹر اسد الدین اویسی جب مسلمانوں کی ہمدردی اور مسلمانوں کی بات کرتے، کبھی ہندوستان میں انہوں نے یہ مدعا اٹھائے، کبھی اسمبلی میں یہ مدعا اٹھائے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر میں اردو میڈیم سے جو بچے پڑھ رہے آج اردو میڈیم سے گورنمنٹ اسکول کے حال دیکھ لو آپ، اور جو جی مسلم بچے گورنمنٹ اسکول میں جتنے پڑھ رہے وہاں پر میں جا کے دیکھو انکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کافی جگہ 10th سے لے کے 9th 10 کے بچوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. ابھی یہاں حیدرآباد اولڈ سٹی میں پورے گورنمنٹ کے اسکولس جو ہے ایک معنوں میں نیل اینڈ وائٹ کی طرح ہے. میں نے کوئی اس کا ریزلٹ برابر نہیں آتا. ہائی سو اسکول برائے نام اسکول ہے کہ کمرے میں دو کمرے میں اور دو شفٹ میں اسکول کام کرتے ہیں. جسٹ ہائی اسکول بولے تو ہے. ہمارے زمانے میں کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوا کرتا تھا. 1-2 اسکول تھے بڑے، وہ بڑے لوگوں کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے اس کے اندر، نوابوں کے ان کے. لیکن پورے بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر انجینئر فلاں 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 سب گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے نکلے. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ اسکولوں کو پلاٹنگ کر دیے، اسکولوں پہ توجہ نہیں دیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس پورا اسکول کا ایجوکیشن سسٹم پورا غلط ہو گیا، ختم ہو گیا. اور بیرسٹر آلموسٹ صاحب گورنمنٹ پورے کا. ہندوستان کے قوم کے رہنما بنتے، ان سے عثمان نگر سنبھالا نہیں جا رہا، عثمان نگر پہ خاموش بیٹھے، ان کے انڈر نہیں آتا، پھر بھی ان کا فرض تھا سب سے پہلے جا کے عثمان نگر کے مدعوں پہ کرنا تھا، کیونکہ ان کو بولنا ضروری ہے. یہ کلمے کی بنیاد پہ اللہ رسول کے نام پہ یہ ووٹ مانگ رہے. وہاں پہ 4 مساجد ہے عثمان نگر میں جو آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن شریف وغیرہ، جان نماز، سب چیز پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. ابھی بھی 4 مسجد ہیں. اور وہ 15 منٹ والے بھیا تو لندن میں بیٹھے ابھی جا کے، جبکہ ان کو یہ پرابلم نہیں دکھ رہی، اور پھر بھی لوگ کیا نہیں ہوگا ان کا انکل، کچھ بھی خیر نہیں ہے. اللہ وہ و مالک ہے اب تو. لوگوں باقی کے اب پاس دولت ابھی اتنی ہو جب گئی ہے کہ ایک میڈیکل کی سیٹ 1 کروڑ میں جاتی ہے، 1.25 کروڑ میں جاتی ہے. تو بالکل، مہینے کو سالانہ جو اور ہے پورے کم سے کم. ہندوستان میں ڈنڈورا ایٹ کی پیچھ رہے کہ اکبر الدین اویسی 14 اسکولہ چلا رہے، 14 اسکولہ چلا رہے. ارے ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے مان لو 14 اسکول چلا کے فری میں بھی ایجوکیشن دے رہے انہوں، تو آپ کے پاس میں جتنی دولت ہے، جتنے کے گھر میں آپ رہ رہے نا انکل، 600 کروڑ کا ان کا گھر ہے، تو اتنے کی اسکول بھی نہیں کھولے انہوں. آج جتنا پیسہ مسلمانوں کے نام پہ چوسے نا انہوں نے، 0.1% بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے، 0.1% بھی مسلمانوں کے لیے نہیں یوز کرے انہوں آج تک کے. یہ لوگ خالی یہاں ہندو پہ مسلمان کی سیاست کر کے کر رہے میں آگے. ایک فارمولا کیا ہے کہ پیسے خرچ کرو الیکشن کے دن، ٹھیک ہے، مین پاور ارینج کرو. 20% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے بوتھ کو، اونلی 20%. بتاؤ. ٹھیک ہے، اور وہ 20% جو لوگ ہے وہ لوگ ڈبل ووٹ ڈالے تو 60% ہو جاتے. بالکل یعنی بالکل بالکل. 20,000 ووٹ پول ہو رہا ہے سمجھو. وہ لوگ آ کے پلٹ کے 2 ووٹ ڈالے تو کتنے ہو گئے؟ 60,000. اور ہر جگہ بھی یہ نیا تو ووٹ کٹنگ کا دھندا بھی سٹارٹ کرے. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے نفرت واد پھیلائے ایک دوسرے میں، ہندو مسلمان ڈیوائیڈ کر دیے پہلے ہی، اور جہاں ڈیوائیڈ نہیں ہوئے تو وہاں جا کے ڈرا کے ڈیوائیڈ کرے. یہ ناگپور مہاراشٹر میں بھی آئے، انہوں الیکشن لڑے، یا کوئی چانسز نہیں تھا جیتنے کا، الیکشن لڑ کے بی جے پی کو بٹھائے. بہار میں گئے، وہ پورے ہندوستان کو معلوم. یو پی کے اندر میں بھی انہوں نے 3 سیٹ ہروائے تھے، قریب سے جو ہے ہاری تھی وہ. اب یہاں پر کیا بولنا، خیر انکل ان کو بہت کچھ ہے، ایک آدھی بار میں آتے یہ دارالسلام میں صرف کینسر. لڑتے ہیں، یہ صرف جا کے لڑتے ہیں بی جے پی کا نام لے کے. بالکل. بی جے پی سے مقابلہ ہم کر سکتے بول کے لڑتے ہیں، لیکن لڑتے ہیں مسلمان کے خلاف کھڑا کرتے ہیں. وہاں جو مسلمان ایم ایل اے ہیں ان مسلمان ایم ایل اے کے خلاف مسلمان کو کھڑا کرتے ہیں. تو یا تو پھر ان کا جو کلمہ ہے جس کو کھڑا کر رہے ہیں لوگ جا کے، اس کا کلمہ صحیح ہے، یا پھر وہ جو وہاں پہ ایم ایل اے ہے، سٹنگ ایم ایل اے ہے، اس کا کلمہ پھر الگ ہوگا، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. صحیح ہے. انہوں جس کو کھڑا کیے وہ مسلمان، اور وہاں جو آلریڈی ایم ایل اے ہے، ابھی وہی 70 ایم ایل اے ہے وہاں پہ ترنمول کانگریس کے، اور اس کے وہاں پہ اس مقام پہ، تو ابھی ان کے خلاف جا کے پورے مسلمانوں کو کھڑا کریں گے. مسلم ایریا میں لڑیں گے، مسلم ایریا کے اندر ہی ووٹ کٹوائیں گے. بالکل 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 انکل. اب یہی ہو رہا ہے، بی جے پی کو بولو تو دیش دروہی بن جاتے، اور ایم آئی ایم والوں کو بولے تو منافق بنا دیتے. یہ لوگ ہندو ایمان مسلمان فروش کی ہو جاتے ہیں. ہندو مسلمان کی سیاست کھیلتے رہے گی. خیر. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو بھکتا ہیں جس کو ہم مرید کہتے ہیں ان کو، جی اور بی جے پی کے بھکت ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے مرید کہلاتے ہیں. بالکل.
इनका डिफिनेशन जो है मुरीद है। मुरीदैन मुरीदैन बरोबर बरोबर बस बरोबर। वो उनका एक ही काम है कि सिर्फ वो गाली देते हैं आपको, हम्म, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। जैसे आप कुछ मुखालिफत किए तो गंदी गालियां देंगे, अगर मैं मस्जिद पे जाके एहतजाज किया आज तो हम्म। उसके ऊपर भी आके गाली देंगे वो। मस्जिद के एहतजाज के भी साथ नहीं देंगे, गाली देंगे वो लोग। अब क्या बोलना अंकल इसमें हमको, बस लोगों उन को लोगों की आंखों समझना के चाहिए ऊपर इस चीज पर्दा, को। उन लोगों की आंखों पे पर्दा है, या इनके पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे नहीं सिखी इलम मसला होता क्या है है ना। अंकल, ये वो क्या बोलते हो, 2-2 रुपए के जो पाकिट वाले आते हैं ना, वो लोग है ये जो इनके टुकड़ों पे जो गांजे के पैकेट पे जो बिकते हैं ना, वो लोग हाँ, गालियां दे के कमेंट्स में इसमें उसमें रहते। बाकी पब्लिक इस चीज को समझ रहा है, जल्दी अवेयरनेस आएगा जल्द से जल्द। और लोगों के अंदर में सबसे पहली बात अंकल, एजुकेशन और अवेयरनेस कम है। लोगों को जो है डर बिठा दिया गया बीजेपी का और इसका, हिंदू मुसलमानों का, वो डर आज तक के है। ये आज बीजेपी का शुरू से इतना डर बिठाए, इतना डर बिठाए कि बीजेपी आज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है 6 साल से, 7 साल और से जब तक कर रही है ना। एमआईएम ऐसी हरकत करते रहेगी और 50 साल बीजेपी रहेगी, एमआईएम और ये बराबर जिस है। हिसाब से सियासत अभी चल रही है ना हिंदुस्तान में, और 50 हाँ, साल बीजेपी रहता, आप देख लो। लोग अभी बोल समझना रहे थे वो चाहिए। हैदराबाद में आ गए, हैदराबाद में आ गए। अरे हैदराबाद में तो आपने बुलाया उनको, अरे बिल्कुल मोदी आजा, योगी आजा, या लड़के बता, बिल्कुल कई बिल्कुल। मरतबा जलसों में चैलेंज किए वो आपने लोग आए। वहां पर में 44 सीट जीते, तो आप ये नहीं देखे कि बीजेपी आपसे ज्यादा जीत के 4 सीट पे से 48 पर आ गए आपको। वो इसमें तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। पूरे हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी के अंदर जी सिर्फ 14,000 वोट्स का डिफरेंस है, हेलो सारे हैदराबाद में। जी। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी का जो वोट लिया है उसने जीएचएमसी में, हम्म और टीआरएस ने जो लिया है वो सिर्फ 14,000 का फर्क है। हम्म। तो अगर ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम अगर उनको मिलता बीजेपी वालों को, तो वो लोग अपना मेयर बनाते। बरोबर खुद इनकी जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बरोबर। जहां पे वो अहमद बलाला जो एमएलए है, हम्म। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 3,000 का फर्क है, बरोबर। सिर्फ 3,000 का बीजेपी एमआईएम में। हम्म। आने वाले टाइम वो लोग और शिद्दत से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो सीट गायब हो जाएगी, बिल्कुल एक सीट गायब हो जाएगी इनकी। तो हैदराबाद के अंदर जो जो हिंदू एरियाज हैं, सेकुलर, जी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया न्यू सिटी में, ओल्ड सिटी नहीं न्यू सिटी में। बरोबर। सिर्फ ये, अब वो पढ़े लिखे लोग क्यों वोट दिए होंगे? नफरत की सियासत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये इलेक्शन सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर हो गया। बिल्कुल 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 अंकल, डेवलपमेंट काम की एजुकेशन की बुनियाद पे बात नहीं कर डेवलपमेंट, रहे लोग, ना कोई नौकरी। बीजेपी से कोई पूछ रहा ना एमआईएम से पूछ रहे अंकल। अपने वालों का काम है अपने वालों से पूछना, उनके वालों का काम है उनसे पूछना कि क्या करे आज तक के, अभी तक। आप मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं रजा इलाही फाउंडेशन के? बिल्कुल 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 देखा मैंने देखते सर, हैं? देखा मैंने दो वो चार वीडियोस देखा था आपका दवाखानों जी। की हालत देखते हैं आप, वहाँ जो लोग पड़े रहते बिल्कुल हैं। अंकल माशाल्लाह, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। खुशी हुई आपसे बहुत बहुत बात करके, और ये उम्र में आप ये काम कर रहे तो अच्छा लगा देख के तो। अल्लाह लेता है काम, इंसान का कुछ नहीं है फारिस। बिल्कुल पहली मर्तबा आपसे बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल फोन्स आ रहे हैं क्योंकि मैं रिलीज होके आया ना, तो बिल्कुल मेरे अपने जो चाहने वाले हैं फॉरेन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह से, वो जी सब नौजवान फोन करके पूछ रहे हैं मेरी खैर खैरियत। जी। तो इजाजत दीजिए मुझे, बिल्कुल 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 इंशाल्लाह अंकल, कभी ओके हैदराबाद अल्लाह, आइए आप। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल। तो इतने फेमस हो गए हैं कि हैदराबाद के अंदर आप जो है एमपी इलेक्शन भी लड़ेंगे तो जो है लोग आपको पहचानेंगे, बिल्कुल भी फारिस नहीं कादरी अंकल, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को इलेक्शन वगैरह में। है इलेक्शन से। जी जी जी। ओके ओके अच्छा अंकल है साहब। बेटा, सवाल पूछना, बिल्कुल सवाल अपना पूछना, राइट है। सवाल पूछना जो है एक जो है बहुत अच्छी अलामत है। बिल्कुल 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 सवाल पूछने से जो है मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल हर किसी का राइट है सवाल करने का, पूछना। बिल्कुल 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 आपने मुझसे पूछा, सबसे पूछते मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है सवाल करना, कोई ऐसी वो बात नहीं है, सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, बराबर करो सवाल, बिल्कुल 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 सबसे करो बिल्कुल सवाल, पूछो। और ताकि बिल्कुल अवाम में भी अवेयरनेस आए कि वो भी अपने लीडरों से पूछें कि भाई हमारा बिल्कुल। दवाखाना कहाँ है बस्ती में। पब्लिक का राइट है अंकल कि हर कोई सवाल पूछना। और आपने लीडरों को जो है ये एक 5 साल में एक बार डोल बजा के आते, इनको वोट देते, भूल जाते। अरे भाई इनको 5 साल याद करो, आपको 5 साल इनके छाती पे पैर रख के अंकल आप काम करवाओ, लोग इनको सांप बना दिए। नहीं, पांच पब्लिक साल सर्वेंट तक है। ये लोग जमीना और तालाबों पे मट्टी डालना,
तालाबें बंद करना, वो पब्लिक का काम है अंकल। वो तो अगर आप उनको करने देंगे तो कोई भी तो चोरी करेगा। चोरी करने वाले को अगर चोरी करने देंगे आप तो वो करेगा। अगर आप जो है उसकी चोरी पकड़ो, उसको बोलो, आप अगर पब्लिक बोले, अगर उनसे काम मांगे तो बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ही है जो उनको लीडर बनाती, और पब्लिक चाहे तो उनको उतार सकती सीट पे से, राइट। चलो, Hyderabad is become old city. Hyderabad is become like a mafia. बिल्कुल वो और भी है। जो लोग मुखालिफत में हैं उनको डराते हैं, केसेस बुक कराते हैं। अभी मेरे ऊपर भी जो है कई केसेस अभी कुछ बुक कराए हैं साइबर वगैरह में, अरे, और शायद मुझे अरेस्ट आज या कल में अरेस्टिंग होने वाली थी, होगी, जाएंगे। अगर अल्लाह नसीब में जेल में जाके 8 दिन रहना हो तो रह के आएंगे, लेकिन हक बात तो बराबर नहीं बोलेंगे। अंकल, अल्लाह है सो अल्लाह हक वालों के हाँ, साथ रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अल्लाह आलम। ठीक अंकल, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप भी बिजी ओके है थोड़ा फारिस, सा। ओके ओके फारिस, ओके अल्लाह ओके हाफिज। ओके। कभी हैदराबाद आओ बिल्कुल तो अंकल, बिल्कुल मुलाकात करना इंशाल्लाह। बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ जो बिल्कुल है आपकी हैदराबादी तवाज़ो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ की बिल्कुल, शुक्रिया। बिरयानी और नहारी पाए जो है बहुत मजे के होते हैं, जी तो अंकल। पाए नहारी और बिरयानी से आपकी तवाज़ो करेंगे इंशाल्लाह। ओके अंकल, ओके 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 बेटा, अंकल, अल्लाह ओके अच्छा रखे, अल्लाह, आपको ओके सलामत रखे। अंकल, ओके ओके अल्लाह ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।